Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Good morning, everybody. In the previous class, we discussed about the classification problem program. I think all of you got it. Till now, we discussed about the k-nearest neighbor model, how to create the model, and after creating the model, we train the model and check the. Till now, we predict the output. Here, I repeat once again. Just read the data from CSV file. I think all of you remember this. Then we read the second and third column. These are the features: age and estimated salary. After that, whether the customer purchased the product or not, that is fourth column. Store it in a y variable. Then split x, generate x10, x-test. Okay. Then split the y values, means salary values, and generate y10 and y-test. After that, if we, due to the high range values of ages and salaries, we scale the data. Here, that is our data set, and this is our x, age and estimated salary. This is our y. Okay, all the y values either 0 or 1. But in case of age and salary values, these are the high range values. That's why after extracting the feature, we scale the feature data. Okay. How to scale this? Using standard scaler. So we create an object of the standard scaler, generate standard scaler object, and we scale all the training data using fit_transform function, which is defined inside the standard scaler class. And same process, we scale the test data using transform function. This is the convention of Python machine learning program. But both the functions functionality are same. After scaling the features x10 and x-test, this, if we observe the x10 and x-test, let's see x10. It will generate low range values from the ages and salary values, isn't it? After that, we generate a neighbor classifier object. Maybe the object name is classifier.
then fit X train and Y train into our model. So we train our model. After training, for testing purpose, we predict the Y value for each categorical feature in X test. This is our X test. Okay. For every feature, this is a single customer age and salary value. For this customer, we predict value in the same way. For this customer, predict the Y value. For every customer, predict the Y value. So how to do that? I think all of you know that here there is a predict function. We pass a list of X test values as a parameter to the predict function, and our predict function predict the Y values for all samples available in the X test and store it in a Y predict. Let's see, in case of Y predict, this is our list of Y predict values. Y values predicted by our model for every test cases available in X test. ये X test है, इसमें जितना सारा सैंपल है सबके लिए Y वैल्यू प्रेडिक्ट किया. तो ये predicted Y वैल्यू जो है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? We want to check the accuracy or error. But remember one thing, student, in case of classification problem, what are the actual Y value? That is Y test. For these samples available in X test, these are the actual Y value available in Y test, isn't it? And these are the predicted Y value. For checking the accuracy, all of you know that always we compare the predicted Y value and actual Y value. In case of simple linear regression, we compare, we check the accuracy using root mean square error or R2 score. In case of root mean square error, all of you know that we subtract all the Y predict values from Y test values and calculate the error. But here, in case of classification, it is not be possible. क्योंकि देखो क्लासिफिकेशन में जब सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसा रिग्रेशन में किए थे, तो क्या आएगा? आइदर 1 आएगा, -1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा. तो रिग्रेशन में रूट मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में कैसे एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे? तो देखो यहाँ जो टेस्टिंग सैंपल्स है, ये टेस्टिंग सैंपल में कितना सैंपल डेटा है? देखो 0 to 99, मतलब देयर आर 100 टेस्ट सैंपल डेटा. For these 100 test sample data, these are the actual Y value available in Y test. And for these 100, अंकित कुछ बोलेगा? अच्छा ठीक है. तो देखो यहाँ एक्यूरेसी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जो 100 सैंपल डेटा है टेस्ट केस में, तो 100 के लिए एक्चुअल Y वैल्यू 100 Y वैल्यू अवेलेबल है और 100 प्रेडिक्टेड Y वैल्यू है. So out of 100 samples, maybe in case of real life project, maybe in test data, maybe 10,000, maybe 20,000 data है, तो भी कैलकुलेट कर सकते. तो यहाँ आउट ऑफ 100 हम लोग कैलकुलेट कर रहा हूँ. कैसे करेंगे? जो कल बोले थे कि ये जो 100 केसेस है, इसमें देखेंगे कितना केसेस, नंबर ऑफ केसेस, हाउ मच केसेस मैच विथ द प्रेडिक्टेड Y वैल्यू. देखो कितना कितना, जैसा देखो जो Y टेस्ट में 0th रो, ये 0, ये 1, तो एक्चुअल Y वैल्यू 0, लेकिन हम लोगों का मशीन क्या प्रेडिक्ट किया है? 1. क्या ये मैच किया? नहीं, मैच नहीं किया, अनमैच केसेस. बट व्हेन actual Y value, Y test
and the predicted y value both are same. देखो 1 1 means match case. In the same way 0 0 means this is also a match case. 1 1 0 0 these are the match cases. In the same way देखो here if the actual y value equal to 0 but predicted y value equal to 1 not match cases. In the same way if actual y value equal to 1 but predicted y value equal to 0 वो भी एक अनमैच केसेस होगा. तो ऐसा करके हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि जितना सारा एक्चुअल y वैल्यू और प्रेडिक्टेड y वैल्यू है तो देखो एक्चुअली हियर देयर आर 100 टेस्ट केसेस 100 टेस्ट केसेस. तो ये जो 100 टेस्ट केसेस है इसमें क्या करेंगे काउंट दो है. एक है कि काउंट द नंबर ऑफ मैच केसेस कि आउट ऑफ 100 में भी 80 केसेस मैच हुआ है. तो मतलब क्या बोल सकते हैं 80% एक्यूरेसी मतलब क्या है 20% एरर. और बाय मेजरिंग बाय काउंटिंग द अनमैच केसेस में भी हम लोग अनमैच केसेस काउंट कर रहा हूँ कि 20 अनमैच केसेस तो आउट ऑफ 100 ऑब्वियसली 80 मैच केसेस. तो यहाँ से भी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं. सो हम लोगों को क्या करना है काउंट मैच केसेस और अनमैच केसेस. तो काउंट मैच केसेस कैसे करेंगे मैच केसेस कब होगा जैसा y अंडरस्कोर टेस्ट एक्चुअल y वैल्यू और y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट predicted by our machine. देखो मैच केसेस कब होगा जब y टेस्ट इक्वल टू 0 एंड y predict इक्वल टू 0 both the cases are 0 or both the cases are 1. ये सब मैच केसेस होगा तो ये काउंट करेंगे. और जब अनमैच केसेस काउंट करेंगे काउंट अनमैच्ड केसेस. अनमैच केसेस कब होगा मे बी y टेस्ट y predict. तो अनमैच केसेस कब होगा मे बी y टेस्ट इक्वल टू 1 बट y predict वैल्यू इक्वल y test equal to 0 but y predict equal to 1 or y test equal to 1 but y predict equal to 0. These are the unmatched cases. So here in case of machine learning provides us a confusion matrix. Using confusion matrix easily, obviously manually we can count, but using confusion matrix we easily calculate the error and accuracy in case of classification problem. How? What is confusion matrix? It is a two-dimensional matrix, 2 by 2. Dimension is 2 by 2, means 2 rows and 2 columns. Okay. 2 rows and 2 columns. Like that maybe. Okay. In this matrix, obviously all of you know that what are the row indexes? 0, 0th row, and this is 1th row. This is 0th column. This is 1th column. What is the cell index? This cell index, obviously this cell index is 0, 0. What is the cell index of this cell? 0, 1. और ये सेल का इंडेक्स क्या है 1, 0.
ये सेल का इंडेक्स क्या है 1 1। तो देखो ये जो मैट्रिक्स का जो सेल इंडेक्स है, तो ये सेल इंडेक्स में 0 0 सेल में क्या स्टोर करेंगे, ऐसा टाइप का जितना सारा केसेस है कि y टेस्ट इक्वल टू 0 एंड y प्रेडिक्ट इक्वल टू 0, ऐसा सब नंबर ऑफ केसेस ऐसा टाइप का वो यहाँ स्टोर करेंगे। मे बी by calculating this we check that कि 0 0 cases 50 है। In the same way, count the number of 1 1 cases, means like this type of cases, 1 1 cases. Count the number of 1 1 cases, means y test equal to 0 and y test equal to 1 and y predict equal to 1. ये count करेंगे, count करने के बाद वो number of cases कहाँ store करेंगे, maybe यहाँ, maybe that type of number of cases equal to 30. In the same way, now we count the number of 0 1 cases, matlab y test equal to 0 and y predict equal to 1, and store the count in this cell of this matrix, maybe 15. And in the same way, again we count the number of 1 0 cases. 1 0 cases matlab y test equal to 1 and y predict equal to 0, and store this count in this cell 5. So here we measure the accuracy by counting the match cases. Out of 100, how many are how many match cases? 50 plus 30 means 80 match cases. So accuracy is 80%. And by measuring the unmatched cases also, unmatched cases 15 plus 5 means unmatched cases 20. By measuring the unmatched cases, we calculate the accuracy. If unmatched cases are 20, means accuracy out of 100, 80. That is called confusion matrix. And confusion matrix same like a Boolean table. I think all of you know that. The 0 means false, maybe 1 means true. Therefore, strongly true and strongly false. Strongly true matlab 1 1, 0 0. By counting the strongly true and strongly false cases. In the same way, how to calculate the error? By counting the false cases only, 0 1 1 0 cases. And this confusion matrix already defined in machine learning. Let's see. A confusion matrix defined in sklearn matrix. No need to do anything manually. Automatically, all the things like this, counting matched cases and unmatched cases, done by this matrix. So here, what I do, print my confusion matrix, comma, confusion matrix is a built-in function, and we pass y test means actual y value and y predict means predicted y value passed as a parameter to that function. And when we print the confusion matrix, if you observe the confusion matrix in the console, let's see my confusion matrix, and matrix is like that. This one is the matrix, okay? In case of that data set, क्योंकि देखो वो डेटा सेट के ऊपर डिपेंड करेगा और प्रेडिक्टेड y वैल्यू जो है. So this is our matrix. Check the matrix and think about the confusion matrix. What confusion matrix represent? Confusion matrix क्या represent करता है? देखो जैसा 52 0 0 मतलब here, sorry, this is 52, this one 5 means 0 1 cases 5. Next 3 मतलब 1 0 cases. देखो think about the 2-dimensional array.
So this is 3 and this is 34. Means a confusion matrix represent actually this type of matrix. Think about the cell values, every cell values like this. Because this is 0 0, this is 0 1, 1 1 and 1 0. So here in case of our program, count the number of match cases. 58 plus 34. 58 plus 34 means what? 58 plus 34 means 50 plus 30 80 and 8 plus 4 13 means 93. तो मतलब क्या है कि 93% accuracy over here means our model predict the result with 93% accuracy. In the same way, देखो out of 193 match cases, so out of 100 how many unmatched cases? देखो 3 plus 5 9 not 93 92 yes 92 and out of 100 तो मतलब कितना unmatched cases 5 plus 3 8 तो मतलब देखो 88% error over here. Obviously error depends on data set. So using confusion matrix we check the accuracy also. In the same way, let's see, there is a built-in function just like a R2 score. The scalar.matrix import here the function defined as accuracy score. Therefore, we pass y test and y predict values as a parameter to the function accuracy score and print what? Print the return value of this accuracy underscore score function. Accuracy underscore score function जो return करेगा उसको print किए हैं. देखो accuracy colon 0.92. Actually, what is the functionality of accuracy score? Actually, accuracy score calculate the accuracy from confusion matrix and directly return the result by dividing it by 100. That's why it will represent the accuracy 0.92. So in this way, directly we check the accuracy also. All of you got it, students? सबको समझ में आया कि क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या यूज करेंगे? नॉट रूट मीन स्क्वायर एरर. ओके, थैंक यू पूजा. एक्चुअली समेशन में मैं गलती किए थे. ठीक है, तो सबको समझ में आया? If anyone any doubt, raise your question or unmute your mic and ask me the question. Now, if we want to predict a new customer, a new customer come, maybe the obviously a new customer should have some age and salary. New customer का भी तो कुछ age and salary है. Maybe age equal to 20, any age. Maybe age equal to 28 and salary equal to 1,90,000. तो वो चेक करेंगे using that model. क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि वो न्यू कस्टमर कौन सा टाइप का है? जीरो टाइप मतलब नॉट परचेज टाइप, नॉट परचेज द प्रोडक्ट, और कि परचेज द प्रोडक्ट टाइप होगा. तो इसलिए कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग प्रेडिक्ट फंक्शन यूज करके प्रेडिक्ट करेंगे. बट रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट, हम लोग जब यहाँ मॉडल क्रिएट किए हैं, मॉडल को कौन सा डेटा देके ट्रेन किए हैं? स्केल डेटा. तो इसलिए देखो जो 28 और 1,19,000 जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली मॉडल में इनपुट नहीं दे पाएंगे. कि पहले क्या करेंगे? पहले जो 28 और 1,90,000 है इसको स्केल करेंगे. स्केल मतलब लोअर रेंज वैल्यू जनरेट करेंगे. देखो एससी डॉट ट्रांसफॉर्म. एससी क्या है? स्टैंडर्ड स्केलर ऑब्जेक्ट, दैट इज एससी. तो पहले ही बोले थे कि प्रेडिक्ट और टेस्ट करने के लिए जितना सारा डेटा है उसको क्या फंक्शन देके स्केल करेंगे? ट्रांसफॉर्म फंक्शन. तो देखो ये जो एससी डॉट ट्रांसफॉर्म, ये जो
SC dot transform, देखो two dimensional. I think all of you know that why we pass two dimensional data. Previously we discussed about it. Now, if we write this SC dot transform 28 1000, 1,19,000, it will return a numpy array like that. तो मतलब क्या देखो 28 से एक लोअर रेंज वैल्यू जनरेट कर रहा है, 1,90,000 से भी एक लोअर रेंज वैल्यू जनरेट कर रहा है. तो ये जो डेटा है एक न्यू कस्टमर का एज एंड सैलरी वैल्यू, इसको क्या किया, ये जो ट्रांसफॉर्म फंक्शन का रिटर्न वैल्यू है वो प्रेडिक्ट फंक्शन का पैरामीटर जैसे पास किया. तो जब प्रेडिक्ट फंक्शन का पैरामीटर जैसे पास कर रहा हूं, देखो इसको कमेंट जैसा, ऐसा आप लोग सब कुछ कोड टेस्ट कर सकते हैं. व्हाट इज द आउटपुट ओवर हियर, देखो एक नंपाई एरे सिंगल डायमेंशन, और ये वन मतलब क्लास वन टाइप कस्टमर. तो एरे से जो वैल्यू, एक ही तो एलिमेंट है तो एक ही वेरिएबल में स्टोर किया. उसके बाद देखो न्यू कस्टमर क्लास इक्वल टू के, न्यू कस्टमर क्लास को प्रिंट किया. देन वी चेक दैट, देखो के जीरो इक्वल टू जीरो, देन इट विल प्रिंट नॉट परचेज टाइप, एल्स मतलब कि वन होगा तो परचेज टाइप. तो इसलिए देखो यहाँ जो आउटपुट दे रहा है कि न्यू कस्टमर क्लास, देखो वन टाइप परचेज टाइप कस्टमर. Maybe customer age is salary is 19,000 and age is 28. Now if we execute the program, check the output, ऐसा होगा तो मतलब क्या है, जो कस्टमर न्यू कस्टमर है देखो क्लास जीरो टाइप, not purchase type. So in this way we predict a new customer class. A new customer belongs to which class using k nearest neighbor algorithm. Okay, all of you got it? Anyone, any doubts? Achha. Now we want to visualize this data. In case of linear regression, by visualizing the data we check the error and accuracy of our model also, isn't it? Here also in case of classification we represent the data using color map like this. At first observe the graph like this. This is called what? This is a color map. Maybe just wait. Now execute the program. Actually देखो, at first we generate a color map like this. ये ऐसा color map generate कराएं. A color map represent what? ये color map क्या represent कर रहा है? This is our graph. In this graph, using x-axis represent age. देखो, using x-axis we represent age, and using y-axis we represent salary. Okay. यहाँ देखो कुछ range of ages and range of salary है. Within that range, all the customers belongs to zero class type. And we represent this, मतलब कुछ range है. जैसा देखो इतना तक जो range है, ये range, ये age का range और ये salary range. Within this range, जो ऑरेंज कलर डोमेन जो है, ऑरेंज कलर देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि इफ अ न्यू कस्टमर बिलोंग्स टू दैट डोमेन, ऑल द कस्टमर्स आर बिलोंग्स टू जीरो क्लास टाइप. और ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि विद इन दैट रेंज
all the range, within that range of age and salary, all the customers are belongs to class 1 type. तो ये जीरो क्लास टाइप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जीरो क्लास टाइप, और ब्लू कलर रिप्रेजेंट क्लास 1 टाइप। जैसा कंट्री मैप में सी, हिली एरिया देखो कलर मैप देके रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा कलर मैप क्रिएट किया है, इसका नाम क्या है, कलर मैप। तो ये कलर मैप कैसे जनरेट करेंगे, तो देखो हम लोगों का जो टेस्ट केस में भी टेस्ट केस देखे, जितना सारा टेस्ट केसेस है, टेस्ट केसेस मतलब एक्स टेस्ट, जितना सारा एक्स टेस्ट वैल्यूज है, तो यहाँ देखो कितना एज और कितना सैलरी वैल्यू, 100 एज वैल्यू 100 सैलरी वैल्यू, तो मतलब 100 एज वैल्यू और 100 सैलरी वैल्यू को जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देके रिप्रेजेंट करेंगे। Okay, maybe this is x axis, this is y axis. तो देखो x axis represent age, y axis represent salary. तो यहाँ देखो कलर मैप जनरेट करना है, तो मतलब कलर मैप कैसे जनरेट करता है, तो जितना सारा पिक्सल पॉइंट है, मे बी ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट जीरो क्लास टाइप कस्टमर, तो देखो ऐसा एक पिक्सल पॉइंट, एवरी पिक्सल पॉइंट, ए सिंगल पिक्सल पॉइंट एकदम नियरेस्ट, और एक सिंगल पिक्सल पॉइंट, और एक पिक्सल पॉइंट, और एक पिक्सल पॉइंट, और एक पिक्सल पॉइंट। तो देखो ये कलर मैप जनरेट करने के लिए ऐसा ह्यूज नंबर ऑफ पिक्सल पॉइंट जरूरी है, तब तो वो कलर मैप जनरेट करेगा। तो एक एज का रेंज ऐसे कि जैसा 0 टू दैट रेंज ऑफ एज कि -1.5 टू maybe 1.7, so within that range we need many ages and salary values, so within some range we need a multiple age and salary value, but here in our test data there are only 100 x values and 100 y values. Is it possible to generate the color map using 100 points? तो 100 पॉइंट्स देखे तो ये कलर मैप कैसे जनरेट करेंगे, पॉसिबल नहीं है। और 100 जो पॉइंट्स है वो ऐसा नहीं है कि एक साथ नियरर डेटा पॉइंट्स है, कि वो सब स्कैटर्ड है, थोड़ा दूर दूर में है। तो इसलिए क्या चाहिए, जो 100 एज वैल्यू 100 सैलरी वैल्यू है, वो 100 एज वैल्यू और 100 सैलरी वैल्यू से थाउजेंड्स ऑफ एज वैल्यू, थाउजेंड्स ऑफ सैलरी वैल्यू जनरेट करना चाहिए विदिन दैट रेंज। विदिन दैट रेंज मतलब देखो जितना सारा एज वैल्यू है उसका एक मिनिमम वैल्यू है, उसका एक मैक्सिमम वैल्यू है। विदिन मिनिमम एज विदिन मैक्सिमम एज मतलब मिनिमम एज और एक मैक्सिमम एज वैल्यू है। Within that range we have to generate multiple age value, क्योंकि देखो हम लोगों को क्या जरूरी है, मल्टीपल एज, मल्टीपल ह्यूज नंबर ऑफ एज वैल्यू, ह्यूज नंबर ऑफ सैलरी वैल्यू। तो क्या होगा, नियरा डेटा पॉइंट्स मिलेगा, वो कलर देकर रिप्रेजेंट कर देंगे। क्योंकि देखो जितना सारा एज वैल्यू जितना सारा सैलरी वैल्यू है उसका वाई वैल्यू प्रेडिक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट हो गया। तो मतलब देखो यहाँ हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी नीड multiple age value within that range and multiple salary value within minimum salary and maximum salary. Maybe we want to generate 2000 age value and 2000 salary value at first. Sorry. तो 2000 एज वैल्यू 2000 सैलरी वैल्यू जनरेट करने के बाद क्या करेंगे,
2000 y वैल्यू प्रेडिक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2000 एज और 2000 सैलरी वैल्यू का डेटा ये कलर देके रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि आउट ऑफ 2000 sum of the age and salary value for sum of the age and salary value predicted y value equal to 0 होगा। It may be out of 2000 1000 data points belongs to 0 class and 1000 data points belongs to 1 class. Then we represent each data point using a specific color. Orange color represent 0 type and blue color represent class 1 type. Then it will generate the color map. Okay. So I repeat once again, तो color map generate करने के लिए हम लोगों को क्या जरूरी है, huge number of age value, huge number of salary value। क्योंकि देखो यहाँ ग्राफ में huge number of nearest points जरूरी है color map generate करने के, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि मे बी हम लोगों का टेस्ट डेटा मे बी ट्रेनिंग डेटा देके भी कर सकते हैं। तो टेस्ट डेटा देके मैं किए हैं, टेस्ट डेटा में 100 जो एज वैल्यू 100 सैलरी वैल्यू है, वो 100 एज वैल्यू और 100 सैलरी वैल्यू से हम लोगों को क्या करना चाहिए, ह्यूज नंबर ऑफ एज एंड सैलरी वैल्यू जनरेट करना चाहिए पहले। कैसे करेंगे, तो देखो एट फर्स्ट क्या किए हैं, देखो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट मैटप्लॉटलिब कलर्स, इसमें कलर मैप बोल के क्लास डिफाइंड है जो यूज करके हम लोग कलर मल्टीपल कलर अवेलेबल है लिस्टेड कलर मैप, तो वो लिस्टेड कलर मैप से कलर हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या किए हैं, लाइन नंबर 46 में देखो x अंडरस्कोर सेट कॉमा y अंडरस्कोर सेट दो वेरिएबल डिक्लेयर किया। क्यों क्योंकि देखो ये जो जितना सारा एक्स टेस्ट है, ये एक्स टेस्ट सब एक्स टेस्ट वैल्यू किसमें असाइन किया, एक सेट में, क्योंकि एक्चुअल एक्स टेस्ट को हम लोग एडिट नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, इसलिए सेम है जितना सारा वाई टेस्ट वैल्यू है वो सबको वाई सेट में स्टोर किए हैं। तो देखो जब अब हम लोग आप लोग एक सेट चेक करो कि एक सेट में क्या है, ये एक्स टेस्ट में जितना सारा वैल्यू है एक सेट में असाइन किया। इन द सेम वे जितना सारा y प्रेडिक्टेड वैल्यू है वो y सेट में असाइन क्या लिखना है, अरे नॉट y प्रेडिक्ट, y टेस्ट, y टेस्ट में जितना सारा y वैल्यू है वो सबको क्या किया, देखो y सेट में असाइन किया। दीज आर द y सेट वैल्यूज। ओके, तो देखो एक सेट में यहाँ कितना एजेस वैल्यू है, 100 एज वैल्यू, 100 सैलरी वैल्यूज, देखो 0 to 99, but we need more than 99 values. How to do that, how to generate this? I think all of you know that in case of NumPy, previously we discussed about it. np.arange is a built-in function. We generate a NumPy array using arange function. और arange function का 3 पैरामीटर था, एक है कि स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, देखो एक सेट मतलब ये एक सेट का ऑल द रोज मतलब जितना सारा रोज है 100 रोज, कॉमा 0th कलम मीन्स देखो ऑल द 0th कलम वैल्यूज, दिस इज 0th कलम वैल्यूज एक सेट का, जितना सारा 0th कलम वैल्यूज है, 0th कलम में 100 एज वैल्यू है, तो मतलब 0th कलम का 100 जो एज वैल्यू है डॉट मीन इज a built-in function in NumPy, means start value equal to minimum of all the age value. In the same way stop value, देखो एक सेट 0th कलम डॉट मैक्सिमम, स्टॉप वैल्यू क्या है, जितना सारा एज वैल्यू है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू 0.01, you can increase the step value also,
कि maybe you can use 0. Not don't think that कि we always have to use 0 1. No, you can use 0 0 1 also. तो देखो जब 0 1 देंगे तो क्या करेगा वो मल्टीपल वैल्यू एजेस जितना सारा एजेस है 100 एजेस है तो 100 एजेस का जो मिनिमम और मैक्सिमम है वो within that range it will generate huge number of age values and store it in arrange ages. Let's see if we observe the arrange ages numpy array arranged ages. तो अरेंज एजेस में कितना वैल्यू है देखो पहले जो एज है यहाँ 100 एज था लेकिन अरेंज फंक्शन कॉल करने के बाद यहाँ क्या हुआ देखो 412 मतलब 413 एज वैल्यू जनरेट हुआ 100 जो एज वैल्यू था उसका मिनिमम और मैक्सिमम जो रेंज है विद इन दैट रेंज क्या कर रहे हैं 413 एज वैल्यू जनरेट हो रहा है इन द सेम वे वी हैव टू जनरेट मोर सैलरी वैल्यूज हम लोग को क्या करना है मल्टीपल सैलरी वैल्यू जरूरी है सेम थिंग देखो np डॉट अरेंज स्टार्ट इक्वल टू x8 देखो देयर इज नो स्टार्ट रो इंडेक्स देयर इज नो एंड रो इंडेक्स वनथ कॉलम डॉट मीन वनथ कॉलम मींस दिस वन ये वनथ कॉलम में जितना सारा सैलरी वैल्यू है उसका एक मिनिमम वैल्यू है तो वो मिनिमम वैल्यू स्टार्ट वैल्यू जैसा यूज कर रहा हूँ और स्टॉप वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू और स्टेप क्या दे दिया 0.01 तो वो भी क्या करेगा जो 100 सैलरी वैल्यूज है वो 100 सैलरी वैल्यू से मल्टीपल सैलरी वैल्यू जनरेट करेगा तो देखो ये जो सैलरी वैल्यूज है कितना सैलरी वैल्यू जनरेट हुआ है देखो लास्ट इंडेक्स 373 मतलब 374 सैलरी वैल्यू जनरेट हुआ है तो देखो यहाँ जो वेरिएबल एक्सप्लोरर हम लोग एक बार चेक करेंगे तो क्या देख रहा हूं देखो नंबर ऑफ एजेस वैल्यू अरेंज एजेस में कितना एजेस वैल्यू है 413 अरेंज सैलरी कितना सैलरी वैल्यूज है 374 लेकिन जब हम लोग कलर मैप जनरेट करेंगे तब कि एजेस वैल्यू और सैलरी वैल्यू जनरेट कर रहा हूं क्योंकि हर एक एज हर एक सैलरी के लिए हम लोगों को वाई वैल्यू प्रेडिक्ट करना है तो देखो ऐसा करना चाहिए तो जितना एजेस वैल्यू सेम नंबर ऑफ सैलरी वैल्यू जरूरी है लेकिन हम लोग जो अरेंज एज फंक्शन इंप्लीमेंट किए हैं अरेंज एजेस में कितना एजेस वैल्यू है 413 कितना सैलरी वैल्यू है 374 तो मतलब थिंक अबाउट द सिनेरियो 413 एज वैल्यू लेकिन सैलरी वैल्यू कितना मिला 374 तो सेम नंबर ऑफ एज सेम नंबर ऑफ सैलरी वैल्यू जनरेट नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों को बाद में हर एक एज हर एक सैलरी वैल्यू के लिए वाई वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहिए तो हम लोगों को क्या जरूरी है सेम नंबर ऑफ एज सेम नंबर ऑफ सैलरी वैल्यू जरूरी है तो डायमेंशन प्रॉब्लम यहाँ आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ये सेम नंबर ऑफ एज और सेम नंबर ऑफ सैलरी कैसे जनरेट करेंगे तो इसलिए देखो उसके बाद क्या किए हैं there is a built-in function available in numpy देखो np.mesgrid और इसमें पैरामीटर जैसा क्या क्या पास किए हैं अभी जो हम लोग जनरेट किया 413 एजेस वैल्यू 374 सैलरी वैल्यूज और mesgrid फंक्शन क्या करेगा तो देखो यहाँ जितना सारा एजेस है 413 एज वैल्यू उसका भी एक मिनिमम वैल्यू इसका भी एक मैक्सिमम वैल्यू है within that range generate ages value but what will be the number of ages value the number of ages value after calling the mesgrid function mesgrid function कॉल करने का बाद जो एजेस जितना सारा एजेस है 413 एजेस है
तो मेसगिट फंक्शन में देखो 413 एज वैल्यू 374 सैलरी वैल्यू पास किए हैं। तो मेसगिट फंक्शन करने का कॉल करने के बाद वो क्या करेगा, जितना सारा एजेस है उसके लिए 374 बाई 413 एज वैल्यू रिटर्न करेगा। इन द सेम वे सैलरी के लिए भी सेम नंबर ऑफ सैलरी वैल्यू रिटर्न करेगा। सैलरी 374, 413 within that range, but they are two dimensional data। क्योंकि देखो यहाँ जो अरेंज एजेस जो वेरिएबल है उसका डायमेंशन क्या है, देखो सिंगल डायमेंशन। लेकिन जब मेसगिट फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो क्या कर रहा है, देखो 374 बाई 413 एजेस वैल्यू, 374 बाई 413 सैलरी वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये जो दो वैल्यूज है उसको कहाँ स्टोर किया, ये x1 वेरिएबल में स्टोर किया और इसको x2 वेरिएबल में स्टोर किया। तो इसलिए मैं क्या लिखे हैं, कैसे कोडिंग में लिखे हैं, देखो x1, x2 पाइथन में ऐसा लिख सकते हैं। तो जो जितना सारा एजेस वैल्यू रिटर्न करेगा वो x1 में स्टोर किया, जितना सारा सैलरी वैल्यू रिटर्न करेगा वो उसको x2 वेरिएबल में स्टोर किया। तो अभी देखो x1 x2 हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देख रहे हैं, देखो सेम नंबर ऑफ एजेस वैल्यू स्टोर्ड इन x1 जनरेट बाय मेसग्रिड फंक्शन, same number of salary value stored in x2 variable generated by maxGrid function, but these are the two dimensional array। लेकिन हम लोग का जो टारगेट था ह्यूज नंबर ऑफ एजेस वैल्यू, ह्यूज नंबर ऑफ सैलरी वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो देखो हम लोग ह्यूज नंबर ऑफ एज वैल्यू, ह्यूज नंबर ऑफ सैलरी वैल्यू जनरेट कर लिए, बट both the arrays are two dimensional, means देखो यहाँ जो x1 और x2 है, तो ये डायमेंशन तो हम लोग पेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा है, जो मेसगिट फंक्शन कॉल करने के बाद x1 और x2 ऐसा डायमेंशन का कुछ वैल्यू है। तो ऐसा तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते 374 बाई 413 एजेस वैल्यू। तो मैं ऐसा करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टू डायमेंशनल डेटा, मे बी लाइक दिस कि there are maybe 6 ages value, maybe 9 ages value and 9 salary value. This is also a two-dimensional array matrix. Maybe think that x1 equal to this and x2 equal to this. Two-dimensional. Don't because 374 by 413 तो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, suppose think that is the dimension is 3 by 3 and the salary dimension is 3 by 3. Okay. लेकिन देखो ये टू डायमेंशनल डेटा, हम लोगों को क्या चाहिए, सिंगल डायमेंशनल x1 एंड x2। मतलब कैसा कि ऐसा टाइप का एक x1 लिस्ट ऑफ, यहाँ देखो कितना x1 वैल्यूज है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोगों को एक्चुअली ये सेप ये लाइक दिस, ये टाइप का, ऐसा टाइप का कुछ
9 x1 values and 9 x2 वैल्यू जरूरी है, ऐसा टाइप का। तो ऐसा टाइप का मैट्रिक्स होगा x1 एंड x2। तो फायदा क्या होगा कि उसके बाद देखो और एक x1, देखो ये x1 एंड x2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक y वैल्यू जनरेट करेंगे। मतलब ऐसा टाइप का x1 x2 होगा तो बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक x1 और x2 के लिए y वैल्यू हम लोग प्रेडिक्ट कर पाए, मॉडल देखें। बट बोथ द arrays are two dimensional, 374 rows 413 कॉलम, तो मतलब लूप चलाना बहुत मुश्किल है। तो देखो ये 2 डायमेंशनल एरे से ऐसा टाइप का एरे कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसलिए देखो यहाँ कुछ बिल्ट इन फंक्शन है numpy में कि पहले क्या करेंगे, जो x1 और x2 जो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है उसको फ्लैट एंड करेंगे। फ्लैट एंड मतलब लाइक दिस, that is after flattening there is a built-in function for flattening the 2 dimensional or any dimensional numpy array. 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो हम लोगों को ऐसा टाइप का फ्लैट एंड एरे जनरेट करेंगे। हम लोगों को ऐसा करना है, हम लोग क्या करेंगे, ऐसा फ्लैट एंड एरे जनरेट करेंगे। हाउ टू डू दैट, numpy provides us another function that is called ravel। ravel एक built in function है, ravel। After calling ravel function we flatten the array like this, matrix like this, okay। But remember one thing, actually we need x1 and x2 inside a numpy array, then we pass this numpy array for predicting the y value। हम लोग को एक numpy array जरूरी है जो array में x1 and x2 ऐसा स्टोर होगा। तो ये numpy array को जब मॉडल में इनपुट देंगे तो हर एक x1 x2 के लिए y वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा, isn't it? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये एक x1 में रेवल फंक्शन कॉल करने के बाद एक फ्लैटेन एरे क्रिएट करेगा, x2 में रेवल फंक्शन कॉल करने से क्या करेगा और एक फ्लैटेन एरे, 2 फ्लैटेन एरे क्रिएट करेगा। ये 2 फ्लैटेन एरे यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक numpy एरे क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग ऐसा करेंगे कि np डॉट एरे फंक्शन सबको पता है। तो इसमें क्या करेंगे, x1 को फ्लैटेन करने का बाद x1 डॉट ravel, सॉरी x1 डॉट ravel, ये क्या करेगा, एक फ्लैटेन टाइप मिस्टेक, ये x1 डॉट ravel क्या रिटर्न करेगा, एक फ्लैटेन एरे लिस्ट ऑफ वैल्यूज, दिस वन, एक्चुअली this one x1 dot ravel, okay। then देखो numpy array में क्या पास कर रहा हूँ, कॉमा x2 dot ravel। तो मतलब देखो ये लिस्ट को भी पैरामीटर जैसा numpy array फंक्शन में पास कर रहा हूँ। तो ये 2 लिस्ट लेके क्या करेगा, एक numpy array जनरेट करेगा लाइक दिस। तो मतलब इसके बाद क्या मिलेगा, numpy array मिलेगा लाइक दैट, ओके। दिस इज numpy array। लेकिन ये कैसा डायमेंशन का आया,
देखो 2 rows 9 columns, क्योंकि 3 by 3 यहाँ 9 एलिमेंट, यहाँ 9 एलिमेंट, यहाँ 2 rows 9 columns जनरेट किया. What is the number of row? 2. Number of column 9. लेकिन हम लोगों को क्या जरूरी है कि 2 columns 9 rows. तो मतलब क्या है, इसके बाद क्या करेंगे, जितना सारा कॉलम है कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे. तो आप लोगों को पता है हाउ टू कन्वर्ट अ कॉलम इनटू रो. मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल टी, ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, जितना सारा कॉलम है रो में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऐसा टाइप का ट्रांसपोज कल करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, ऐसा टाइप का एक नामपाई एरे मिलेगा जिसमें सब x1 x2 अवेलेबल है. तो ऐसा फॉर्मेट में x1 x2 मिल जाएगा तो इसका y वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं. गॉट इट. तो जितना सारा x1 x2 और y वैल्यू है वो लेके हम लोग कलर मैप जनरेट करेंगे. तो इसलिए देखो यहाँ क्या लिखे हैं, बहुत सारा फंक्शनलिटी है तो स्टेप बाय स्टेप इसलिए डिस्कस किया. देखो कंटूर, देखो plt.contour है. plt मतलब आप लोग मैटप्लॉटलिब यूज किए हैं. देखो plt मतलब मैटप्लॉटलिब पाइपप्लॉट में जैसा हम लोग बार्ट फंक्शन यूज किया था, प्लॉट फंक्शन, स्कैटर फंक्शन यूज किया था, तो कलर मैप जनरेट करने के लिए और एक फंक्शन है कंटूर फंक्शन. तो कंटूर फंक्शन में क्या क्या पास कर रहा हूँ, देखो x1 एजेस वैल्यूज 2 डायमेंशनल, x2 सैलरी वैल्यूज 2 डायमेंशनल. देन देखो क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट, देखो व्हाट इज दिस, x1 डॉट ravel, x1 को फ्लैट एंड कर दिया. देखो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट x1 डॉट ravel एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज, फ्लैट एंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज फ्लैट, कॉमा x2 डॉट ravel, ये दोनों को देखो विद इन ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट. तो मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, क्योंकि x1 डॉट ravel एक सिंगल डायमेंशनल लिस्ट, x2 डॉट ravel सिंगल डायमेंशनल लिस्ट, वो दोनों को देखो कॉमा सेपरेटेड करके विद इन ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट में स्टोर किया, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट. तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट देके क्या कर रहा हूँ, देखो नंपाई एरे जनरेट कर रहा हूँ. तो ये नंपाई एरे जो रिटर्न करेगा, देखो नंपाई एरे जनरेट कर रहा हूँ, डॉट टी ऑलरेडी प्री डिफाइंड, टी मतलब कैलकुलेट द ट्रांसपोज. तो मतलब ये ट्रांसपोज करने का बाद जो हम लोगों को 2 डायमेंशनल नंपाई एरे मिल रहा है, मतलब ऐसा टाइप का नंपाई एरे, दिस टाइप x1 x2 मिल गया. तो इसको क्या कर रहा हूं, एज ए पैरामीटर टू द प्रेडिक्ट फंक्शन. देखो प्रेडिक्ट फंक्शन का पैरामीटर जैसे पास कर रहा हूं, तो मतलब प्रेडिक्ट फंक्शन क्या करेगा, ऐसा टाइप का सिंगल डायमेंशनल y वैल्यू रिटर्न करेगा. लेकिन कंटूर फंक्शन में क्या क्या पास कर रहा हूँ, एजेस वैल्यू, सैलरी वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड y वैल्यू, सबका सेट, सेट मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए. तो इसलिए देखो जो क्लासिफायर डॉट प्रेडिक्ट किए हैं वो तो ऐसा टाइप का है, ये y सिंगल डायमेंशनल. तो इसको क्या करना चाहिए, ऐसा x1 और x2 का जो शेप है वो सेम शेप में रिसेप कर देना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन शेप होना चाहिए कंटूर में जो भी पैरामीटर पास कराए. तो इसलिए क्या किए हैं, देखो जो प्रेडिक्टेड y वैल्यू मिला उसको रिसेप किया है. रिसेप, व्हाट इज द शेप, आप लोगों को पता है कि ये शेप एक प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है numpy में, x1 डॉट शेप करेंगे तो वो शेप रिटर्न करेगा. तो मतलब रिसेप करके पैरामीटर जैसा कंटूर फंक्शन में पास कर रहा हूँ, x1 x2 और प्रेडिक्टेड y वैल्यू को रिसेप करके पास कर रहा हूँ, कॉमा अल्फा इक्वल टू 0.8, ये कॉन्ट्रास्ट है कि ग्रे डीप जो करता है. अल्फा ऑलवेज, अल्फा का जो वैल्यू है वो कैसा होगा, विद इन 0 and 1, नॉट लेस देन 0 एंड नॉट ग्रेटर देन 1.
और लिस्टेड कलर मैप प्रोवाइड्स अस अ कलर। देखो सी मैप इज ए बिल्ट इन, ये कॉन्फ़िगरेटिव फंक्शन है, इसमें एक पैरामीटर है सी मैप, जैसे अल्फा एक पैरामीटर था, सी मैप और एक पैरामीटर है। इसमें क्या कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ कलर। तो लिस्ट ऑफ कलर में देखो दो कलर है, ये टपल है, देखो विद इन फर्स्ट ब्रैकेट कॉमा सेपरेटेड कलर वैल्यू। तो व्हाट इज द 0th कलर, ऑरेंज। व्हाट इज द 1th कलर, 1th इंडेक्स कलर, 1th। तो देखो ये कंटूर फंक्शन क्या करेगा, जितना सारा x1 x2 वैल्यू है वो सबका, जिसका y वैल्यू प्रेडिक्टेड y वैल्यू भी पास कर रहा हूं, देखो जिसका प्रेडिक्टेड y वैल्यू इक्वल टू 0, वो 0 कलर देकर रिप्रेजेंट करेगा वो सब डेटा पॉइंट। और जितना सारा x1 x2 का प्रेडिक्टेड y वैल्यू 1 होगा वो सब 1th कलर देकर रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी कलर पास कर सकता है, जितना सारा कलर मैटप्लॉटलिब में अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद ये पार्ट बाद में डिस्कस कर रहा हूँ, जो कमेंट आउट किए हैं। उसके बाद क्या किया है, देखो plt डॉट टाइटल के नियरेस्ट नेबर एज सैलरी, मतलब एक्स लेवल वाई लेवल एंड plt डॉट शो। तो उसके बाद देखो ऐसा टाइप का एक कलर मैप, सॉरी, ऐसा टाइप का एक कलर मैप जनरेट हो गया। ओके, ऑल ऑफ यू गॉट इट स्टूडेंट्स। अच्छा, कलर मैप जनरेट करने के बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं, जो 100 डेटा पॉइंट्स है, जो एक सेट में देखो 100 डेटा पॉइंट्स है, ये सब डेटा पॉइंट्स में जितना सारा एज और सैलरी वैल्यू, जितना सारा कस्टमर का वाई वैल्यू इक्वल टू 0, वो सबको रेड सर्कल देकर रिप्रेजेंट करेंगे। जितना सारा कस्टमर का वाई सेट इक्वल टू 1, वो सबको मे बी ग्रीन कलर देकर रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब 100 कस्टमर्स को ये कलर मैप में रिप्रेजेंट करेंगे, चेक करेंगे। ये कैसे करेंगे, मतलब स्कैटर प्लॉट होगा। तो स्कैटर प्लॉट कैसे करेंगे, लेट्स सी। ये लाइन्स ऑफ कोड लिखे, तो plt डॉट एक्स लिमिट, मतलब एक्स एक्सिस लिमिट, एक्स एक्सिस जो है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम कौन सा वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स लिमिट आल्सो बिल्ट इन फंक्शन, x1 मिनिमम, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एज। तो x1 का मिनिमम वैल्यू, x1 का मैक्सिमम वैल्यू, y एक्सिस का लिमिट मेंटेन करना चाहता है, तो x2 डॉट मिनिमम, x2 में क्या है, सब सैलरी वैल्यू, उसका जो मिनिमम और उसका जो मैक्सिमम, y एक्सिस लिमिट सेट किया है। उसके बाद देखो यहाँ जितना एक सेट में जितना सारा कस्टमर का y सेट इक्वल टू 0, वो सब कस्टमर को मैं भी रेड कलर देके रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, रेड सर्कल देके। और जितना सारा कस्टमर का y वैल्यू इक्वल टू 1, वो सबको ग्रीन सर्कल देकर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे, तो हम लोगों को ऐसा रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहले देखो क्या किए हैं कि y सेट में क्या क्या यूनिक वैल्यू अवेलेबल है वो रिट्रीव किए हैं। कैसे रिट्रीव किया, देखो यहाँ नामपाई में एक यूनिक बोल के भी फंक्शन है, यूनिक y अंडरस्कोर सेट। ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, चेक करो। देखो एक एरे रिटर्न करता है 0 एंड 1, मतलब y सेट में दो यूनिक वैल्यू है, एक 0 और एक 1। ये जो यूनिक वैल्यू है, देखो हम लोगों को लूप चलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो जितना सारा y सेट में जितना सारा 0 है, वो सब रो के लिए एक सेट से, जैसा 0th रो, तो मतलब सॉरी y सेट में देखो ये रो में 0 है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट रो का एज वैल्यू सैलरी वैल्यू लेना चाहिए,
सेम देखो 0th रो 2th रो में 0 है, उसका एज वैल्यू सैलरी वैल्यू लेना चाहिए। तो इसलिए क्या किया हम लोग लूप चलाए। कहा देखो np डॉट यूनिक वाई सेट और एन्यूमरेट क्यों किए हैं देखो इफ वी राइट द फॉर लूप लाइक दिस फॉर I, j for maintaining the index in if we write in this way np dot unique here and print I, comma j देखो it will give an error कि इन np यूनिक जो रिटर्न कर रहे हैं इसमें ऐसा करके लूप नहीं चलेगा। क्यों? ये सबस्क्रिप्ट इटरेबल नॉट इटरेबल, देखो इट इज नॉट इटरेबल, तो इसलिए हम लोग लूप को कैसे लिखे हैं लेट्स सी। So actually enumerator already predefined. If we write in this way, print I, comma j, तो देखो लूप चल रहा है। तो enumerate क्या करता है एक्चुअली जो नॉट इटरेबल ऑब्जेक्ट है उसको उसमें इटरेटर सेट करता है कि जिसमें हम लोग फॉर लूप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए देखो फॉर I, j इन enumerate np डॉट यूनिक y सेट, तो फॉर लूप क्या चलेगा जितना सारा y सेट में यूनिक वैल्यू है, कितना y वैल्यू है 2, 0 एंड 1, तो फॉर लूप क्या होगा 2 बार चलेगा। इच टाइम क्या कर रहा हूँ देखो I, j मतलब फर्स्ट टाइम I इक्वल टू 0 j इक्वल टू 0, सेकेंड टाइम I इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1, तो इसलिए ऐसा करके फॉर लूप को लिखा है। उसके बाद देखो क्या किया इच टाइम, तो फॉर लूप ये फॉर लूप कितना बार चलेगा 2 बार चलेगा। I इक्वल टू 0 j इक्वल टू 0 फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम देखो इनसाइड द फॉर लूप क्या किया plt डॉट स्कैटर, क्योंकि हर एक डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो plt डॉट स्कैटर, स्कैटर फंक्शन आप लोग पहले भी यूज किया है। तो स्कैटर फंक्शन में लिस्ट ऑफ x वैल्यूज और लिस्ट ऑफ y वैल्यूज पास करना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सेट में जितना सारा एजेस वैल्यू जितना सारा सैलरी वैल्यू सबको तो पास नहीं करेंगे फर्स्ट टाइम। जितना सारा कस्टमर का वाई सेट इक्वल टू 0 वो सब कस्टमर को रेड सर्कल देकर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए कैसे लिखे हैं देखो ये कंडीशन है, ये नाम पाई में एप्लीकेबल है। वाई सेट इक्वल टू जे, तो फर्स्ट टाइम जे का वैल्यू क्या है 0, तो इसलिए देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हेन वाई सेट इक्वल टू 0 जितना सारा रो का वाई सेट इक्वल टू 0 है वो सब रो का देखो एक्सेट से 0th कॉलम वैल्यूज, मतलब ऐसा देखो वाई सेट इक्वल 0th कॉलम वैल्यूज, 0th कॉलम में देखो ये रो का वाई वैल्यू 0, सेम देखो 2th रो का वाई वैल्यू इक्वल टू 0, 4th रो का वाई वैल्यू इक्वल टू 0, तो एक्सेट का 0th कॉलम एक्सेट का 0th कॉलम में जितना सारा रो का वाई सेट इक्वल टू 0 है वो सब वैल्यू फेच किए हैं एंड पास इट एज ए पैरामीटर टू द स्कैटर फंक्शन। सेम देखो वाई एक्सेट में 1th कॉलम का जितना सारा वैल्यू है वो सब का जितना सारा वैल्यू का वाई सेट इक्वल टू 1 fetch all the exit 1th column values for y set equal to 1. Exit 1th column, that is column index, and that is the condition y set equal to j. If first time j equal to 0, तो list of salary value fetch किया है exit में, जितना सारा सैलरी के लिए y set equal to 1,
उसके बाद देखो C इक्वल टू लिस्टेड कलर मैप, और यहाँ देखो एक टपल, 0th कलर कौन सा है रेड, 1th कलर कौन सा है ग्रीन। देखो ब्रैकेट देखिए जे का वैल्यू क्या है फर्स्ट टाइम 0, तो मतलब क्या होगा 0th कलर को फेच करेगा, और लेवल क्या है क्लास 0। तो मतलब जितना सारा रो के लिए y सेट इक्वल टू 0 सब रेड सर्कल देकर रिप्रेजेंट होगा। सेम थिंग नेक्स्ट टाइम जब जब फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा एक सेट 0th कलम का सब 0th कलम का वैल्यू फेच करेगा जिसका y सेट इक्वल टू देखो सेकंड टाइम j इक्वल टू 1, सेम है एक सेट 1th कलम वैल्यूज, और कौन सा कलर देके रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन कलर देके रिप्रेजेंट करेगा, क्लास इक्वल टू j। तो इसके बाद जब प्रोग्राम रन कर रहा हूं देखो इसके बाद जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या आउटपुट दे रहे हैं, लेट्स सी। देखो जितना सारा कस्टमर का y सेट इक्वल टू 0 वो रेड सर्कल देके रिप्रेजेंट हो कर रहा है, और ऑरेंज कलर तो 0 क्लास टाइप कस्टमर रिप्रेजेंट करने के लिए डोमेन है। इन द सेम है जितना सारा कस्टमर का क्लास 1 टाइप का है वो ग्रीन सर्कल देके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन देखो ये जब ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ भी कुछ एरर है, क्यों? क्योंकि देखो कुछ ग्रीन सर्कल है जो ऑरेंज डोमेन में आ गया, लेकिन ग्रीन सर्कल कौन सा टाइप कस्टमर परचेज इक्वल टू 1, तो वो जितना सारा ग्रीन सर्कल ब्लू कलर डोमेन में होना चाहिए। तो देखो यहाँ दो ग्रीन सर्कल है, दिस वन एंड दिस वन, जो ऑरेंज कलर में आ गया। इन द सेम वे देखो रेड सर्कल कहाँ होना चाहिए ऑरेंज कलर डोमेन में होना चाहिए, लेकिन कोई कोई रेड सर्कल ब्लू कलर डोमेन में आ गया। 1 2 3 4 5, हाँ 5। तो देखो यहाँ से भी हम लोग एरर चेक कर सकते हैं, जो मॉडल हम लोग बनाया तो उसको विजुअली रिप्रेजेंट जब करेंगे यहाँ से भी हम लोग एरर चेक कर सकते हैं। गॉट इट? इन द सेम वे इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ए सिंगल कस्टमर, जो न्यू कस्टमर, तो सेम थिंग सब सेम कलर मैप जनरेट किए हैं। कलर मैप जनरेट करने का बाद क्या करना चाहिए देखो एक्स लिमिट वाई लिमिट, लेकिन जो प्लॉटिंग कर रहा हूँ सिंगल कस्टमर, तो वो देखो एससी डॉट ट्रांसफॉर्म 28, मतलब उसको तो स्केल करना चाहिए। पास कर रहा हूँ एससी डॉट स्केल करने का बाद 0th वैल्यू एक्स एक्सिस जैसा ट्रांसफॉर्म, 1th कलम वैल्यूज वाई एक्सिस वैल्यू जैसा पास कर रहा हूँ, और उसको रेड स्टार देकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो न्यू कस्टमर है वो चेक कर रहा हूँ जिसका सैलरी 20 सॉरी जिसका एज 28 और सैलरी 1,90,000 है, वो कौन सा कलर डोमेन में जा रहा है देखो ब्लू कलर डोमेन, मतलब क्लास 1 टाइप कस्टमर। So in this way, we check the new customer. कि new customer belongs to which class? By observing the graph, we can check it also. सबको समझ में आया? ये थोड़ा सा बहुत सारा फंक्शनैलिटी यहाँ पर है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिस्कस किया। थोड़ा एक बार स्टडी कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। हाँ, सबको समझ में आया? Anyone, any doubts, any question? कि what is the functionality of Ravel function? What is the functionality of mesh grid function? তারপরে why we use this in case of predict function, why we pass the values in this way, what is listed color map? Listed color map is a built-in function. If you search in the Google, just wait. Actually, what is listed color map provides us multiple color map in Matplotlib. Matplotlib.colors listed color map. Actually ये listed color map class क्या करते हैं, हम लोगों को बहुत सारा कलर्स प्रोवाइड करता है।
बहुत सारा। कलर्स कहाँ पर है? मैटप्लॉटलिब कलर्स, ये जरा देख सकते। You were reading an old version of documentation. ये सब लिस्टेड कलर मैप्स है, कलर मैप, कलर लिस्ट ऑफ कलर दिया था जरा देख। बस सी मैप मैटप्लॉटलिब था। প্রচুর ধরনের কালার আছে, बहुत सारा कलर अवेलेबल है ये। ओके, ये सब कलर का नियम है, सब कलर का नियम सी में यूज कर सकते हैं। ओके, और जो अल्फा है, अल्फा एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट, जैसा 0.1 कर रहा हूँ, थोड़ा ग्रे टाइप का आएगा, देखा, थोड़ा सा ग्रे टाइप का हो गया। ओके, तो ये अच्छा लग रहा है देख के। हाँ, जो भी है, तो अल्फा चेंज करके मतलब विजिबिलिटी और अच्छा कर सकते हैं, और ज्यादा दे देंगे तो मतलब कंट्रास्ट ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, सबको समझ में आया स्टूडेंट्स अच्छा से? रिप्लाई मी, एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? अच्छा, ओके, थैंक यू आशिता। और इन अदर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गॉट इट? अच्छा, फिर एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, कल शायद आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एग्जाम है, तो इसलिए मैं कल का क्लास कैंसिल कर देते हैं। डोंट वरी, आप लोग आराम से एग्जाम दे दीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट, आज तो थर्सडे, ओ फ्राइडे, सैटरडे तो आप लोगों का एग्जाम, सॉरी आप लोगों का क्लास नहीं है। ठीक है, तो कल क्लास कैंसिल करेंगे तो नेक्स्ट मतलब सैटरडे, संडे, मंडे, तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। हाँ, all of you remember this, due to the exam on tomorrow, and share the information to all of you। जो लोग एब्सेंट है आज, तो सबको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो 31 स्टूडेंट्स हैं। तो कल एग्जाम के लिए मैं कल का क्लास कैंसिल कर देते हैं, तो हम लोगों का पास तो टाइम है, ऐसा ऐसा कर लेंगे। तो नेक्स्ट वी मीट on Monday at same time, 11:30. Okay, thank you all. Here today I want to conclude my session, and all of you read carefully. Okay, thank you all.